اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اج میں تمنوں اللہ کی نشانی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا کہ تم مینوں پہچانو میریاں نشانیاں نال۔ میری زمین نو دیکھو، آسمان نو دیکھو، پہاڑاں نو دیکھو، دریا نو دیکھو اور پھر ان وچوں میری خدائی نو پہچانو۔ ناظرین، اج میں تمنوں ایک ایسا منظر دس رہا ہاں کہ صبح سویرے فجر تے بعد جس ویلے سورج طلوع ہوئے تو سورج چڑھن والی جگہ تے اس قسم کی لالی ہوئے، اس قسم کو نظارہ ہوئے۔ اج 4 جنوری 2025 سنیچروار کو دن، ضلع ادھمپور گراں جکھینی۔ صبح سویرا کو جو میں منظر تمنوں دسیا رہوں، اس جگہ دے سورج چڑھنوں ہے۔ باقی تم سارے آس پاس دیکھو، اج رات ہے، رات ختم ہوئے لگی، فجر کو ٹائم ہو چکو ہے، نماز ادا ہو چکی ہے۔ فجر دے بعد کو جڑا جو ٹائم ہے نا، اس وچ تم جو نظارہ دیکھ سکے، اس جگہ دے سورج طلوع ہونا ہے۔ یا لالی جڑی ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی تو زمین پر روشنی پھیلتی جائے گی، تو جڑی بجلی کی لائٹ، بلباں کی لائٹ تمنوں دیکھا لگی، یا اس روشنی کی اگے ماند پڑ جائے گی، یا سورج والی روشنی غالب آ جائے گی تو بجلی کی لائٹ جڑی ہے یا مغلوب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، سورج تے چند اپنی برابر ڈیوٹی دے لگا، اپنا مقررہ شیڈول پر ہر دن طلوع تے غروب ہوئے، ایک سیکنڈ اگے پیچھے اپنا ٹائم دے نہیں ہوتا ہے، پورا وقت کا پابند ہے۔ یہ سبق ہے انسانوں واسطے بھی کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ کامیاب وہی ہے جڑا وقت کو پابند ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز تھارے پر فرض کی ہے اپنا مقررہ وقتوں پر۔ مقررہ وقت ہے ہر نماز کو۔ بہرحال میں تمنوں یا اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی، صبح سویرا کو یہ منظر تمنوں دسنا مقصود ہے۔ اس نہ دیکھو، روشنی آہستہ آہستہ بدے لگی ہے تو زمین پر جڑی عارضی لائٹ ہے، بجلی کی لائٹ ہے، وہ ڈم ہوتی جائے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جڑی روشنی ہے سورج کی، وہ غالب ہوتی جائے رہے۔ دیکھو اس پاسے پہاڑی ہے، صبح سویرا کو منظر ہے، 4 جنوری 2025 سنیچروار کو دن، ضلع ادھمپور گراں جکھینی، محلو پکھی پانی۔ ماشاء اللہ، دیکھو پوری ایک لائن بنی ہے، تو اتوں یا دھوپ صحیح ہے کہ اتوں یا دھوپ ظاہر ہوئے گی، سورج کی دھوپ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، زمین پر روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ آسمان نہ دیکھو، آسمان پر بھی روشنی نمایاں ہوتی جا رہی ہے، رات کا آثار ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ایک رات مکن وچ آیا رہے، دیہڑی شروع ہونے وچ آیا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ نو پہچانو، اللہ کی نشانیاں دے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ،
वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। या जामा मस्जिद, मल्ला पक्खी पानी, ग्रां जखैनी, तहसील व ज़िला उधमपुर, जम्मू कश्मीर, इंडिया। माशाअल्लाह। देखो आसमान पर सारियां साइडें रोशनी आयारे लगी भी, ज़मीन पर रोशनी बधियारे लगी भी, रात जिहड़ी है वह नस्यारे लगी भी, दिहाड़ी जिहड़ी है वह कब्ज़ो करयारे लगी भी। जो अल्लाह को निज़ाम है, अल्लाह को एक सिस्टम है। हमेशा अपना मुकर्ररा वक्तां पर सूरज ने तलू होना है, अपना मुकर्ररा वक्त पर सूरज गरूब होएगा। इसी तरह चन्न है, चन्न भी अपना मुकर्ररा वक्त पर तलू ते गरूब हुआ है। हर दिन को अलग टाइम हुआ है, चन्न को भी तो सूरज को भी हर दिन को अलग टाइम हुआ है, मगर फिक्स है। अपनी मर्ज़ी को टाइम नहीं है, फिक्स है, हर साल फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आज 4 जनवरी 2025 नो इसको टाइम इतना बजा के इतना बजा पर तलू होना है सूरज ने, तो अगले साल 2026 इसी दिन 4 जनवरी नो इसको अलग टाइम होएगा। ऐसा नहीं है, फिक्स टाइम है, मुकर्ररा टाइम है। किताब मौकूता, मुकर्ररा वक़्त है, और उस पर पूरा जो अल्लाह को जो निज़ाम है, निज़ाम शमसी, उस पर चले लगो। साइंस विच दस्यो कि निज़ाम शमसी के सूरज का ख़ानदान नो, शमस के सूरज नो, तो निज़ाम शमसी हो गया सूरज ते अगे उसको ख़ानदान, ख़ानदान को एक मेंबर ज़मीन है। इसी तरह का ही 9 सैयारा है, 9 सैयारा है जिन्हों सूरज की धुप लगे, किसी को घट लगे, किसी को ज़्यादा लगे। सिर्फ ज़मीन ऐसी है कि जिसके पर इंसान पैदा वो जानदार पैदा हुई। 18,000 किस्म की मखलूक़ात इस ज़मीन पर पैदा हुई। इसकी आबो हवा जिहड़ी है वह मुआफ़क़त रखे जानदार अशिया वास्ते कोई ये ज़िंदा रह सके। बाकी जिहड़ा सैयारा है, या तो उन पर गर्मी ज़्यादा है, सूरज के नज़दीक है वे ज़्यादा, तो या तो इतनी सर्दी है कि सूरज के भी बहुत ज़्यादा दूर है, धुप को बिल्कुल घट असर है, तो तो बर्फ़ ही रह जमी भी। सिर्फ ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी मुअतदल है, नॉर्मल है। एक इंसान का रहने वास्ते, बाकी जानवरों का रहने वास्ते मुआफ़िक जगह है, मुनासिब माहौल है। अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमनो इंसान बनायो, इस ज़मीन पर भेजियो, तो मारो फ़र्ज़ है कि इस ज़मीन पर रह के अपनी ज़िंदगी का जिहड़ा भी चंद साल अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है वे अच्छी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करते हुए गुजारा, हकूकुल इबाद अदा करते हुए गुजारा, हकूकुल्लाह अदा करते हुए गुजारा। हकूकुल इबाद हुआ कि लोकां का हक, लोकां का हक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। इंसान जिस वेले मर जाएगा हिसाब किताब होएगा। किसी इंसान को 50,000 उधार लियो तो वो अदा नहीं कियो, किसी को दे कोई सामान लियो तो वो अदा नहीं कियो, औलाद ने भी नहीं कियो कि तुम भी अदा करियो। ये हकूकुल इबाद है, इसनों अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। अगर पैसों किसी को उधार लियो तो वो अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करना, बल्कि उस बंदा को लानो या तो उसनों अदा करना या उसको माफ़ करवा लेना जिंदगी विच ही। अगर हैसियत ऐसी है कि अदा करने के काबिल ही नहीं है कि और बंदा नो रिक्वेस्ट करो माफ़ करन चाहे तो कर सके तो माफ़ी हो गई। अगर नहीं
माफ़ करे तो फिर अल्लाह ताला के कोले भी जाके बंदो शर्मिंदा होएगो। इसकी माफ़ी अल्लाह ताला कोले भी नहीं होएगी। इन्हों के हकूकुल इबाद, किसी बंदा को हक वो बंदो ही माफ़ कर सके, अल्लाह उसने माफ़ नहीं कर सकता। हकूकुल्ला जड़ा है अल्लाह का हकूक है। जिस तरह नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात अदा करनी है, हज अदा करना है, ये हकूकुल्ला है, ये अल्लाह का अपना हक है। वो चाहे को किसी ने माफ़ करना चाहे तो कर सके, उसके कोल इख्तियार है, वो मालिकुल मुल्क है। वो चाहे इसके पर पकड़ किसी बंदा नो पकड़ विच लाण चाहे तो उसनों सज़ा दे सके। वो मुख्तार कुल है। वो किसी की एक नेकी परों भी उस बंदा की बख्शिश कर सके तो किसी की दिखलावा वाली 1000 नेकियां नो भी रिजेक्ट कर सके। एक नेकी करने वाला बंदा नो भी जन्नत विच पा सके तो 1000 नेकी वाला बंदा नो भी जहन्नम विच पा सके। वो बंदा का दिलों का राज जाने, वो बंदा का इखलास जाने, वो हर बंदा की अंदर की नब्ज़ जाने, हर बंदा की शाह रग तो ज़्यादा नज़दीक है तो उससे ज़्यादा हर बंदा की जिहड़ी है अंदर की नीयत है अल्लाह तो बगैर और कोई नहीं जान सकता। या तो उस बंदा नूं पता होवे, बाकी अल्लाह ताला नूं पता होवे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमनों इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो नाजरीन, रोशनी ज़मीन पर बदे लगी। वीडियो का शुरू में ही अजय 12 मिनट हुआ, कितना अंधेरा था। ये खेत जेड़ा है ये नेरा लग्या रहा लगा वा तो 12 मिनट के अंदर अंदर ही कितनी देखो चेंज आ गई है। खेत सामने दिखाई देने लगा। लाइट जी है पावर वाली बिजली का बल्ब है, ये जड़ा है मांद पैन लगा, इनकी रोशनी गायब होती भी लभ्यारे लगी। और अल्लाह ताला की रोशनी जी है सूरज की या गालिब होती भी नज़र आया रहे लगी भी। जो अल्लाह ताला को निज़ाम है, अल्लाह ताला को सिस्टम है, जो क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा। बंदा की बुनियाद, बंदा की मियाद घट है। चंद साल एक नफस नो इस दुनिया पर रहने को हक है। बड़ी अहम बात है नाजरीन। चंद साल जो भी रूह इस दुनिया पर आयो इंसानी शक्ल विच, कुछ साल ही उसनों इस दुनिया पर रहने को हक है। जो एक कुदरती कानून है, अल्लाह को निज़ाम है। कोई 150 साल अज तक हमने सुनियो नहीं कि नबी पाक की उम्मत विच 150 साल किसी ने उम्र पाई। जो भी पैदा होयो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 63 साल तो नबी पाक की उम्र हुई थी। 70 साल 80 साल 90 साल इतनी उम्र हुए लोगों की। मगर इसकी एवरेज देखी जाए तो वह जी सुन्नत उम्र है, उम्र नबवी 63 साल, एवरेज देखी जाए तो लगभग वह ही हुआ। कुछ उसकी घट उम्र में गुजर जाए, कुछ उसके ऊपर भी जाए, एवरेज वह 63 साल के आसपास बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब नो अपनी जितनी भी ज़िंदगी है, जितनी भी उम्र बाकी है, इस पर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमने तौफीक दिए कि हम किसी को दिल ना दुखावा। अगर किसी की मदद नहीं कर सकता तो किसी ने ज़हमत को सबब भी नहीं बना। अगर किसी की हम
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, किसी ने और तरह की मदद नहीं कर सकता, तो हमारे पर ज़रूरी है कि हम किसी को अजाब विच मुबतला भी ना करा। अपनिया चालों नाल अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करके किसी ने तकलीफ़ विच पानो, यो भी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ विच पानो एक बड़ो गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वास्ते तो इंसान पैदा कियो कि हर लिहाज नाल इम्तिहान लिया, अल्लाह का हकूक कितना अदा करे तो लोगों का हकूक कितना अदा करे। हम इस दुनिया पर देखा कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई माजूर है, किसी की एक ही जंग है, किसी की एक ही बाँह है, एक ही हाथ है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है कि रोटी खाना नहीं मिलती, कोई काफ़ी अमीर है, अमीर लोग भी है, गरीब लोग भी है, और फिर हर तरह का दिमाग रखने वाला भी है। कोई बिल्कुल सिंपल सादा है, शरीफुल नफस है, कुछ बड़ा चालाक शातिर होशियार है। इस सारा माहौल विच रहता मां हमने खुद अपनी मंजिल तय करनी है। हमने खुद देखना है कि इस माहौल विच, इस समाज विच मैं क्या करना है। कोई गरीब है तो मैं क्या उसकी मदद करनी है, किस तरीक़ा नाल करनी है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान नो मद्देनज़र रखते में, अल्लाह का कुरान नो मद्देनज़र रखते में करनी है। नीयत अपनी पहले खालिस करनी है कि जो भी मैं कर रहूँ अल्लाह ताला वास्ते कर रहूँ। किसी भुल्ला बन अगर मैं रस्तों भी दसिया रहूँ तो नीयत मेरी सवाबगी है कि वो अल्लाह ताला को फरमान है, तो उस पर अमल करते में मैं यो अपना हक अदा कर रहूँ। किसी ने पानी पिलाया रहूँ, किसी ने खाना खिलाया रहूँ, तो नीयत उस अल्लाह ताला का कुरान, अल्लाह ताला का फरमान पर है कि अल्लाह ताला का हुक्म है ता मैं कर रहूँ लगो। अपनी मर्जी से मैं नहीं कर यार, तो अपनी वाह वाही लैन ली मैं नहीं कर यार, तो या किसी इंसान के बिच बड़ो बनने लई, उसने बड़ो दिखाने लई मैं नहीं कर यार, तो बल्कि इस वास्ते कर यारूँ कि अल्लाह को मेरे पर यो ही हुक्म है कि ज़मीन पर तो ज़िंदगी गुजार इस तरीक़ा के नाल। नीयत खालिस हुआ, कोई उसके बिच वो नहीं हुआ, दिखलावा वाली गल नहीं हुआ, किसी पर एहसान करने वाली गल नहीं हुआ, बल्कि जो नेकी करो फिर उसमें भुल जाओ। इस तरह याद नहीं रखो कि मैं यो इस तरह यो काम कियो सो, वो इतना बड़ो काम कियो सो, लोगों को सुनाता फिरो, वो इखलास नहीं रहो। वो अपना आपनों लोगों की नज़र में बड़ो बनाने की कोशिश, तो इस तरह की कोशिश जी वह इखलास न ख़त्म कर रहा है। बंदा ना उस नेकी को जो अजर आखरत विच मिलना थो उससे महरूम कर छोड़े, क्योंकि वज़न उस नेकी को है जी खालिस अल्लाह की रज़ा के वास्ते हुआ है। वह हदीस एक हदीस विच दसियो कि मंगन वाला सवाली नूं तुम इस तरह दियो कि सज्जा हथ नाल दियो, खब्बा हथ नूं भी पतो नहीं चले। ये इशारो तो समझने वाला वास्ते कि नेकी कोई भी करो इस तरह करो कि किसी को पता नहीं चले कि इसने के नेकी की है। अल्लाह तबारक व तआला हमनो अल्लाह ताला का फरमाया वा कुरान पाक विच जेड़ा अल्लाह ताला ने इंसान वास्ते नसीहत फरमाई है, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन, दुनिया पर देखो तो मैं जी निशानी तमनो दसिया रूँ थो सूरज तलू होने की, सूरज की रोशनी गालब आ गई
बिजली वाली रोशनी मगलूब हो गई। देखो अज 20 मिनट की वीडियो हुई है। 20 मिनट पहले के मंज़र थो तो 20 मिनट के बाद यो मंज़र है। खेत सामने लभ्या रहे, पहाड़ी सामने लभ्या रहे, पूरी ज़मीन नज़र आन लगी है। रात को अंधेरो जो वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लोग अपना अपना कामां नूं घरों निकलन लगा है। ते अज 4 जनवरी 2025 की सनीचरवार का दिन की शुरुआत हो चुकी है। अल्लाह ताला ने जितना दिन हमारी ज़िंदगी विच लिखिया उन विचों हम शुक्र करा कि एक और दिन हमारा नसीब विच आ पुजियो है। इसको हम सही इस्तेमाल करा। हम इन दिनों ते इन रातों का मालिक नहीं है। हो सके कितना दिन कितनी रात हमारी ज़िंदगी की बाकी रह गई हमको पूरा पता नहीं है। लास्ट पर वही गल है कि अल्लाह ताला ने जिस इम्तिहान में हम रखिया इस पर पूरा उतरा, अमल अपना खालिस करा, इलम हासिल करा। अगर इलम बंदा कोले होगो तो वो ताई ऐसी गल कर सकेगो, ताही वो अल्लाह किया इन अलामात नूं पहचान सकेगो, अल्लाह की निशानियां दे अल्लाह नूं पहचान सकेगो। ये सारी अल्लाह तबारक ताला की निशानी है। सुबह होते ही अलग अलग तरह का परिंदा अलग अलग आवाज़ नाल अल्लाह को जिक्र करन शुरू हो जाए। इत भी कुछ परिंदा तमना आवाज़ आती होएगी। ये अल्लाह ताला की निशानी है। रात में कोई परिंदो आवाज़ नहीं करतो। जैसे ही सुबह हुआ, सुबह सवेर आते ही फजर तो भी पहले परिंदा अजान, खासकर मुर्गो जो है, मुर्गा की अजान मशहूर है कि मुर्गो अजान दे है फजर तो भी पहले। उस तो बाद अलग अलग तरह का परिंदा वे भी अपनी आवाज़ ज़ाहिर करे। उस वेले उनको आवाज़ ज़ाहिर करने को मकसद हम अगर देखा तो सिवाय इबादत दे कुछ नहीं होता। ना तो उस वेले वे कोई दुश्मन से बचान की अपनी आवाज़ तां बुलंद करे, वह भी ज़रूरत नहीं होती। बल्कि एक टाइम टेबल है उनको भी कि हर दिन उस वक्त पर उन्हें उस अपनी ख़ास आवाज़ के नाल ज़ाहिर होना है। और परिंदा की जी है ज़बान है वह अल्लाह ताला ही जाने। मारो मनना है कि यह जी हर दिन की परिंदा की चहचहाहट हुआ मखसूस वक्तों पर या उनकी इबादत हुआ, वे अल्लाह ताला को याद करे, वे शुक्रानो भी अदा करे कि या अल्लाह शुक्र है अंधेरी रात के बाद दिन की शुरुआत हुई है। शुक्रानो अदा करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नो ते हज़रत हवा अलैहिस्सलाम नो जिस वेले जन्नत विचों बाहर फेंक सुटियो ज़मीन पर, तो किताबां में लिखियो कि उस वेले नेरी रात थी। एक अंधेरी रात विच उन्हों ज़मीन पर छोड़ दितो गयो, बड़ा परेशान। आखिर टाइम गुजर तो गयो, रात ख़त्म होने लगी तो सुबह की रोशनी ज़ाहिर होने लगी। जिस वेले सुबह की रोशनी उन्हें देखी कि ज़ाहिर होने लगी तो उन्हें अल्लाह को शुक्र अदा किया कि रोशनी भी आन लगी है। तो किताबों में लिखियो कि 2 रकात नमाज अदा की शुक्राना की। वह 2 रकात नमाज हमारे पर अल्लाह तबारक ताला ने फ़र्ज़ की
فجر کی 2 رکعت فرض. یا شکرانہ کی نماز تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. اس تو ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ہے کہ جس ویلے بندوں کسی پریشانی وچ فسے ہوئے اور جس ویلے پھر اس پریشانی تی اس نو کچھ نکلنے کی صورت بنتی نظر آوے تو اس نو شکرانہ ادا کرنا چاہیے گا. شکرانہ کا نفل ادا کرنا چاہیے گا کہ اللہ تیں ہی ایسا حالات میرا واسطے بنایا کہ میں اس پریشانی اس مصیبت سے نکلنے کے قابل ہوا. یہ شکرانہ نفل نماز کی صورت وچ بھی ہو سکے, صدقہ خیرات کی شکل وچ بھی ہو سکے, کسی طریقہ نال بھی اللہ کو شکرانہ ادا ہو سکے. مختلف طریقہ ہوئے غریباں مسکیناں نو مدد کرنے کی شکل وچ بھی ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ امنو کہن تے سنن تے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 26 منٹ اس ویڈیو نو ہو گیا. سورج کی جڑی روشنی ہے وہ غالب آتی بھی نظر نہیں آئی تھی, بلکہ غالب ہو چکی ہے زمین پر. کوئی بلب کی لائٹ آن دکھائی نہیں دے آتی ہے ابھی. اللہ کی لائٹ پوری زمین پر پھیل گئی ہے تو انسان کی لائٹ پوری زمین پر مدھم ہو گئی ہے. سر چڑھنی اللہ کی. انسان بھی جتنی کوشش کر سکے اپنا دماغ استعمال کر کے, مگر دن نو رات نہیں بنا سکتے تو رات نو دن نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت وچ ہی ہے. اس کا اپنوں ایک گل یاد آئی کہ انسان نو جدو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیتو ہے, پھر انسان نے دنیا پر کے کچھ نہیں کیو, کے چیز نہیں بنائی. قرآن وچ سب تو پہلی سورت ہے سورت فاتحہ. وہ شروع ہے الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کی. ساری تعریف یہ بھی نہیں کہ زیادہ اللہ کی تو باقی کسی اور چیز کی ہے, ساری اللہ کی. پھر علماء کرام نے مفسرین نے اس کی تفسیر وچ بڑی گل لکھی ہے کہ مثال کا طور پر ایک بندہ نے مسجد کو مینار بنایا ہے, ایک کاریگر نے, نال اس کے مزدور بھی تھا. مسجد کو مینار بنایا عالی شان, بلندی بھی کافی, ڈیزائن بھی اچھا. ان کچھ لوگ تعریف کرے کہ اس کاریگر کی خوب تعریف کرے کہ اس نے کتنا اچھا مینار بنایا ہے. مگر مفسرین کرام علماء کرام کہے کہ تعریف بندہ کی بھی اتنی حد تک کرو, مگر تعریف اللہ کی ہے. اس کے وچ بھی تعریف اللہ کی ہے. مینار بندہ نے بنایا, کاریگر نے بنایا, تعریف اللہ کی ہے اس کے وچ بھی. جس بندہ نے وہ مینار بنایا وہ بندوں کس نے بنایا, اس بندہ نو یہ صلاحیت کس نے دیتی, اس بندہ نو یہ دماغ کس نے دیتا, اس بندہ نو صحیح سلامت کس نے رکھے ہو, اللہ تعالیٰ نے رکھے ہو. اس واسطے انسان نے جتنی بھی ترقی اس زمین پر کی ہے نا, یا اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے. انسان کی قابلیت کچھ نہیں ہے اس وچ. کوشش ہے, اللہ تعالیٰ نے کوشش رکھی ہے کہ ہر انسان کوشش کرے علم سیکھن کی, حکمت سیکھن کی. علم سیکھ کے تے لوگ ڈاکٹر بنیا, انجینئر بنیا, اپنا وقت دیتو ہے, اپنا ٹائم پیسوں خرچ کر گئے. جڑو علم سیکھو جس پر محنت کی تے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس نو. مگر سب تو زیادہ جڑو
ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। कोई भी इंसान यो नहीं कह सकता कि यो मैं कियो, बल्कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। मैं अल्लाह ताला कोलों मंगी, मेहनत की, दिमाग खर्च कियो, माल खर्च कियो, जिस्म खर्च कियो, तो फिर कोई डिग्री बंदा नू हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सब तो बड़ी ज़ात है, वह बेपरवाह है। जिसनों चाहे बेहिसाब रिज़्क अता करे, जिसनों चाहे तंगी मुफलसी विच रखे। इन्ना अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसनों चाहे बेहिसाब रिज़्क दे। वो भी इम्तिहान हुआ है, किसी नूं ज़्यादा दे के आजमाए, किसी नूं घट दे के आजमाए। जिन कोले ज़्यादा अक्सर वे गलत कामां विच मुबतला हो जाए, जिन कोले माल व दौलत ज़्यादा है वे अक्सर गलत कामां विच मुबतला हो जाए, गलत बुराइयां विच, समाजी बुराइयां विच मुबतला हो जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमनो हमेशा अपना हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।